السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ دو اہم موضوعات پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک ہے جی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوا، بڑا آپ یہ کہیں کہ گرما گرم اجلاس تھا۔ اندر کی کہانی کیا، مفتی کفایت اللہ پہ آرٹیکل 6 لگانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا، مشاورت کیا کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ایف سی 3 سال کے لیے لگائی جائے گی، اس کی منظوری دی گئی، اور پھر چیئرمین ایف بی آر کی مدت ملازمت یعنی بطور چیئرمین ایف بی آر 3 ماہ کی توسیع کی گئی۔ اس کے علاوہ اندر کی کچھ کہانیاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ٹسل ہمارے سامنے آئی، ایک لڑائی سامنے آئی جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں۔ ریما عمر اور حسن نثار کے مابین، حسن نثار کو آپ لوگ سارے جانتے ہیں، کالم نگار، اینکر پرسن، پروگرام بھی جیو پہ کرتے ہیں، اور ریما عمر انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر ہیں، ساؤتھ ایشیا کی وکیل ہیں، سوبر خاتون ہیں، دھیما دھیما بولتی ہیں۔ کیا لڑائی تھی، کیسے ہوئی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ دو آج اہم ٹاپک ہے، کچھ اندر کی سٹوریز ہیں، ایک تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے ذرا پاکستان میں صحافتی جو ہے وہ طریقہ کار یا اینکرز کی انداز جو نرالے انداز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر وفاقی کابینہ میں اہم خبریں کچھ ایک دو آپ کو دینی ہیں، اور ایف سی اور ساتھ میں مفتی کفایت اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ کس نے کیا بات کی۔ تو ریما عمر رپورٹ کارڈ پروگرام، علینا شیخ اس کو جو ہے وہ کرتی ہیں، میزبانی کرتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی حسن نثار کا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انداز کیا ہے، کس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ذرا پہلے تھوڑا سا حسن نثار کی وہ ویڈیو دیکھ لیں، کیا وہ بات کر رہے ہیں، پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھو، یہاں پاکستان میں سیاست صنعت ہے، تجارت ہے، دھندا ہے۔ بات نہ لائلٹی کی ہے، نہ کسی اصول کی، نہ اخلاق کی، نہ قاعدے کی۔ یہ دھندے کی بات ہے بی بی، خالص دھندا۔ وارے میں ہوگا دے دیں گے، نہیں ہوگا تو باپ کو بھی نہیں دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن میں پیسہ لگتا ہے اور لوگ پبلک آفس میں آ کے اپنی دولت بناتے ہیں۔ کس ملک میں ایسا نہیں ہوتا علینا؟ یہ جو تنقید ہے یہ بھارت میں بھی ہوتی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوتی ہے۔ حسن صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، اور آپ بہت اونچا بولتے ہیں، آپ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ امریکہ میں یہ بات ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ پاکستان میں ہماری سیاست جو ہے وہ تجارت ہے، ڈورا ہوں اس لیے اونچا بولتا ہوں، اس طرح نہیں، لیکن میں نہیں ہوں، تو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ ریما کا کامنٹ کمپلیٹ کر کے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ جی، تو یہ میرا خیال ہے 2-3 جو ہے یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور ہم نے مت ویورز کو بھی لگتی ہے، حسن نثار صاحب، بہت سے کامنٹس آتے ہیں کہ میں بول رہی ہوتی ہوں پھر آپ مجھ پہ چیخ رہے ہوتے ہیں، اچھا لگتا نہیں ہے، اچھے آپٹکس نہیں ہیں۔ اور یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے؟ تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان فلانا ٹمکانا، یہ ڈھونگ بند کرو، نہ سر نہ پیر ہے، کہیں اور کیوں نہیں اس طرح مرتے؟ یہ میفیاز ہیں، ٹھیک، انہوں نے مرنا مارنا ان کے کاروبار کا، دھندے کا حصہ ہے بھائی۔ 70 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی، بڑے بڑے خاندان جو ایک دوسرے سے ٹکرائے، ان میں تو کوئی سیاست نہیں تھی، ایک دوسرے کے انہوں نے 200 بندہ مارا، انہوں نے قربانیاں۔ ٹھیک ہے، اور ملک یہاں تھا، یہ کسی جوگے ہوتے؟ ٹھیک ہے جی، اور مشرف والے پروگرام پر بات پروگرام رکھو، ستی قسم کی بات، نہ سر کا پتہ نہ پیر کا۔ اچھا جی، تو آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں حسن نثار کا وہی انداز، ہر اینکر کے ایک اپنا بھی انداز ہوتا ہے، ہر تجزیہ کار کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تباہی بربادی، لعنت ہے ان پہ، فلاں فلاں، پیسے ہے، یہ جناب دھندا بن گیا ہے، سیاست نہیں ہے۔ ریما عمر ان سے کہہ رہی ہیں کہ جناب عالی یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پیسہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں، بھارت میں، یہ کوئی پاکستان میں انوکھی چیز نہیں ہے۔ تو حسن نثار پھر اس پہ جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ
फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और रीमा उमर उनको कहती हैं कि हसन निसार साहब आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, चीखते हैं, थोड़ा आहिस्ता बोला करें। हसन निसार साहब रीमा उमर को कहते हैं कि मैं डोरा हूँ इसलिए ऊंचा बोलता हूँ। रीमा उमर कहती हैं मैं नहीं हूँ डोरी। फिर उसके बाद हसन निसार उसी अंदाज में ऊंचा बोलते हैं और ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड की सूरत में ये चीज़ सामने आई। तो बहस ये चल निकली है कि हसन निसार के हवाले से ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि वो कोई कंट्रीब्यूटेड बात नहीं करते, मतलब उनकी बात कोई इस अंदाज में नहीं होती कि जिससे कुछ हासिल किया जा सके। वो वही कि जी बगैरत मुसलमानों ने क्या इजाद किया, हमने मंजी के अलावा क्या इजाद किया, चारपाई हमारी इजाद है और हमने क्या किया, यूरोप वालों को देखे हम इखलाकी दवालियापन, और वो जिस तरह के उनके प्रोग्राम मेरे मुताबिक का प्रोमो है उस वही मतलब उस स्टाइल में बात करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में जो है वो देखने वाले इन चीज़ों से थोड़ा सा ना, जब शुरू में आया था ना ये काम तो बड़ी ये चीज़ें हिट जाती थी, तो इसीलिए हसन निसार साहब को प्रोग्राम भी मिल गया। लेकिन अब देखने वाले जो हैं इन चीज़ों से जो है वो आप कहें कि ये बिकने वाली चीज़ें नहीं रही। और आपने देखा होगा हसन निसार साहब ने ये कहते हैं मेरे पे लानत हो और इस तरह की बात, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इमरान खान के बड़े सपोर्टर थे, फिर उन्होंने जनाब ये भी कहा कि जिसने वोट दिया इमरान खान को, और वो इस तरह की बातें। खैर हसन निसार साहब का एक अपना स्टाइल है। इसी अंदाज में अगर हम बात करें 4-5 ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे एंकर हैं जिनकी मजमूई अंदाज, जिनका सूरत हाल वो बात करते हुए मतलब किसी कायदे कानून का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये पाकिस्तानी सहाफत, जैसे मैंने कल कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी सहाफत जो है वो नीचे जा रही है, वो नशेब की जानब जा रही है। और उसके वजह क्या है? उसके वजह यकीनी तौर पे हम साफी हैं, हमारी वजह से ही जा रही है। अब हमें ये देखना होगा कि लोग क्यों नहीं हम पे एतकाद रख रहे या हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। अब क्यों यूट्यूब चैनल ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, क्यों लोग वहाँ पे चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये तो एक बात होगी जी। हसन निसार वाला कंट्रोवर्सी आपने वीडियो भी देख ली। अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया पे हम एक अलहदा से भी लाग करेंगे, तो उस पर बात करेंगे। अभी मुझे जल्दी जल्दी जाना है। जो असल में आपको स्टोरी देना चाहता था और देना चाहता हूँ वो है वफाकी काबीना की। अब जल्दी जल्दी उस तरफ मैंने आना है। और वफाकी काबीना में आज 7 नुकाती एजेंडा था, और सबसे पहले तो जो बात हुई वो महंगाई पे हुई। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि देखें जी अवाम महंगाई का शिकार है और हमें सबसे पहले इस पर कार्रवाई करनी होगी और लोगों के रिलीफ जो है वो फराम करना है। वज़ीर आज़म ने एक रिलीफ की बात की और उसके साथ साथ दूसरी जो उन्होंने बात की वो उन्होंने की कि जी अपनी कामयाबियां उजागर करें। ये जब भी कल भी एक तर्जमानों के इजलास हुआ, थोड़ी उसके साथ मैं आपको वो भी बता दूं, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे और कहा कि अपनी कामयाबियां गिनवाएं। जब भी इजलास होता है कोई भी, वफाकी काबीना का होता है या तर्जमानों का होता है, हुकूमती का और तहरीक इंसाफ की पार्टी तर्जमानों का, तो ये कहा जाता है अपनी कामयाबियां गिनवाएं। अब कामयाबियां बड़ी कम है। आपने देखा होगा कि कल शिबली फराज साहब कितने गर्म थे उसमें काशिफ अब्बासी के शो में, और इसी तरह हामिद मीर के शो में, और उसी तरह फैसल वाडा साहब काशिफ अब्बासी के शो में कितना अग्रेसिव थे। तो ये वो अग्रेसिवनेस वहीं से आई, वो उसी इजलास से उठ के आ रहे थे। तो उन्हें कहा यह जाता है कि इजलास जब होता है ना, जो सख्त नहीं बोलता है ना, मतलब उसको कहा जाता है कि आप नहीं बोल रहे, आप सही, आप अपना काम सही नहीं कर रहे। पहले भी इसी वजह से लोगों को हटाया गया और फिरदौस शेखवान की तारीफ की जाती है इजलास में। जो तर्जमानों के इजलास हुआ उसमें भी तारीफ की गई और वज़ीर आज़म ने उसमें एक दो और चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम लोगों को पकड़ेंगे और ये आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होने देंगे और लोगों को भी पकड़ेंगे जनाब। और उन्होंने हदायत की कि एक्शन लिया जाए उन अकाउंट्स के खिलाफ जो शख्सियात को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये तो कल की बात हुई। आज की बात में आज जो एक पहले तो वज़ीर आज़म ने वो कहा, फिर ब्रीफिंग थोड़ा सा हल्का सा ढोल की कोरोना की बजाई गई। उसके बाद सबसे ज़्यादा बहस हुई कि जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बयानात पे मुख्तलिफ वज़रा ने ये कहा कि जनाब अगर यहाँ पे ना रोका गया तो कल ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा और ये सीधा जो है मतलब पाक फौज पे तनकीद की जा रही है।
तो तकरीबन आप ये कि कंसेंसस के साथ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक कंसेंसस के साथ जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की मंजूरी आप समझे कि इत्तफाक किया गया। कहा गया कि अगली काबीना मीटिंग में मुशावरत हतमी की जाएगी, यानी फैसला कर लिया गया कि जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये खबर मतलब अब सामने आई है तो वफाकी काबीना इस पर थोड़ा वेट करेगी। मतलब उन्होंने फैसला इस इजलास में भी हो सकता था, लेकिन ये कहा गया ज़रा आप ये कि रिएक्शन चेक कर लें और अगले इजलास में हतमी फैसला जो है वो सामने लाया जाएगा। यानी आप ये समझे फैसला कर लिया गया, अब रिएक्शन चेक किया जाएगा, उस रिएक्शन के मुताबिक जो है अगला फैसला किया जाएगा। अब जो वहाँ पे 2-3 वज़रा के माबैन जो है वो बात हुई। एक तो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन के हवाले से शेख रशीद अहमद ने कुछ चीज़ें बताई और सबसे अहम चीज़ जो गिलगित में FC 3 साल के लिए तैनात की गई, कहा तो ये जा रहा है कि टंबर माफिया के लिए तैनात की गई, लेकिन टंबर माफिया के लिए नहीं तैनात की गई, CPAC का मामला है उस हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उस अंदाज में अभी मजबूत नहीं है, वो उस अंदाज में डिलीवर नहीं कर पाएगी और जो अपोजिशन है वो बड़ी मजबूत है। और एहतजाज भी आपने देख लिए जो इलेक्शन के बाद हुए, तो इसलिए FC जो है वो टंबर माफिया की उसमें वो की गई कि जी टंबर माफिया के मामले में FC जो है वो तैनात की गई। बहरहाल FC की तैनाती की पूरी स्टोरी फिर हम आपको बताएंगे। इशारतन हमने आपको कुछ बता दिया, अब आगे चलते हैं। और एक अहम जो है वो एक्सटेंशन दी गई 3 माह के लिए जो है इनाम गनी को, जो इस वक्त FBR के चेयरमैन हैं। उनका आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो है वो फैमिली के हवाले से बड़ा एक केस चल रहा है, वो भी मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो भी बड़ी चीज़ें आगे लेके आएगा। अब वफाकी काबीना में कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और वो तल्ख जुमलों का तबादला जो था वो महंगाई के हवाले से ही था। मुराद सईद और दीगर वज़रा ने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि जी महंगाई जो है हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आने वाले दिनों में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो महंगाई है। इसके अलावा एक ज़रा ये भी चलते चलते बात करें कि वहाँ पे जिक्र मुशर्रफ की हाई ट्रिलियन का नहीं हुआ। साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब कफ़ायतुल्लाह की बात की जा रही थी तो उस वक्त कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ कि साबिक डिक्टेटर के खिलाफ जो है वो एक चलाया गया था जी हाई ट्रिलियन का केस और उसका फैसला भी आया और फिर वो मामला कहाँ पे है इसका जिक्र कफ़ायतुल्लाह का जिक्र होता रहा, लेकिन इसका जिक्र वफाकी काबीना में से किसी ने भी नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वफाकी काबीना में जो लोग बैठे हैं तकरीबन 60 से 70% लोग तो वो बैठे हैं जो मुशर्रफ की कैबिनेट का हिस्सा थे या मुशर्रफ की पार्टी में ज़्यादातर कैबिनेट का हिस्सा जो मुशर्रफ के थे वही मतलब लोग बैठे थे। तो यकीनी तौर पे वो अपने साबिक बास के हवाले से इस तरह की बात नहीं कर सकते थे। तो ये था वफाकी काबीना के इजलास और ये कुछ खबरें आई। एक वो बात जो कल जिस पे लड़ाई हुई, जिस पे शिबली फराज साहब भी लड़े कि एक मौसूफ हैं जो जिनका क्लिनिक है अपना बाल लगाने का, यानी जिसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, उसका क्लिनिक है और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के बाल लगाए थे और वो अब उनको पिम्स अस्पताल का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया गया है, यानी वो सरबराह बना दिए गए हैं पिम्स अस्पताल के। इसमें शिबली फराज साहब बड़े गुस्से में हुए और उन्होंने कहा कि जी पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक मेरिट है ये भी एक सवालिया निशान है कि यहाँ पे तो जो ट्रांसप्लांट करता है उसको पूरा अस्पताल दे दिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने और सैयद अउन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने